Hello students, let us continue our Indian judiciary from subordinate courts. Subordinate courts are those courts which come under different types of high courts. So now each high court have the power to guide and supervise different types of subordinate courts. Say for an example, district court and taluka court, fast track court, pota courts. Pota court is actually a court in which all the matter related to any terrorism are being solved. The full form of POTA is Prevention of Terrorism Act. Different kinds of tribunals and certain special courts are also included in subordinate courts. Each state is divided into an administrative unit called district, consisting of a civil court, criminal court and revenue court. स्टूडेंट्स प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट जैसे कि सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स आते हैं. लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट जज. वी डिस्कस्ड अबाउट सुप्रीम कोर्ट, वी डिस्कस्ड अबाउट हाई कोर्ट. नाउ विल डिस्कस समथिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अबाउट दैट over here in your textbook it is given about district judge. Now in a district judge is been selected by the governor of that state with the consultation of high court. हाई कोर्ट के जजेस के कंसल्टेशन के साथ गवर्नर बैठ के डिस्ट्रिक्ट जज का इलेक्शन करते हैं. Now the qualifications of the district judge are the person should be citizen of India, point 1. Next is he should be having an experience or in practice in the sense कि उन्होंने काम किया है for at least 7 years, 7 साल के लिए उन्होंने as an advocate workout किया है in any of the court. He should be, या person should be an officer in the judiciary of either the state or the central government. स्टूडेंट्स ऑफिसर दिया है, ऑफिसर इन द सेंस कोई भी कार्यकाल करने के लिए, तो दैट इज नोन एज ऑफिसर. is appointed as the judge of the district court. All other judges other than the district judge are appointed by the governor or the high court in consultation with the state public service commission. Now see, only the district judge over here has been selected by the government and other judges are selected with the help of high court judges or the officers over there and the governor of that state. The judge who handles the civil suits is called district judge and the judge who handles the criminal cases are under session judge. Please try to remember, जो सिविल केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज सॉल्व करते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, एंड जो क्रिमिनल केस होते हैं वो सिविल जज यानी कि सेशन जज सॉल्व करते हैं, मतलब सेशन कोर्ट में सारे क्रिमिनल केसेस को हैंडल किया जाता है. और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारी चैलेंजेस, पिटीशंस, रिक्वेस्ट को जो भी लोअर कोर्ट से आई है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होती है. अगर if any petitioner is not satisfied with the decision of the lower court and if they want to go to the district court, then they are supposed to give 1 lakh rupees as a fees in the district judge. And the judge of the district court has the power to run the cases. सारे केसेस जो डिस्ट्रिक्ट जज में सॉल्व होते हैं वो है मैरिज, डाइवोर्स, एलिमोनी, रिफॉर्म्स एंड केसेस ऑफ पेरेंटल कस्टडी. एलिमोनी इन द सेंस either it can be distribution of property or it can be for the cost of living. जो डाइवोर्स के बाद जो भी खर्चा पानी होता है तो दैट इज़ नोन एज एलिमोनी. And parental custody कि after a divorce the child या the children will be living with either mother, father or the grandparents, whatever it is, then it will be again solved in the district court. The criminal courts include session court. हमने आगे भी किया था कि criminal cases session court में सेशन जज उसको डिक्लेयर करते हैं. तो इट कैन बी आइदर द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलतदार एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट. मतलब ऑल दिस मैटर्स आर बीइंग सॉल्व्ड ओवर हियर इन क्रिमिनल केसेस.
The courts have power to give punishment of imprisonment ranging 3 to 10 years. डिस्ट्रिक्ट जज के पास या लोअर कोर्ट्स के पास, ये सारे सेशन कोर्ट्स के पास 3 से 10 साल के सज़ा सुनाने के लिए पावर है एंड पेनल्टी है एंड दे पेनल्टी इज़ अबाउट 5,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ उनको पेनल्टी एज एन फाइन भरना पड़ता है. और अगर इन केस इफ़ देर इज़ अ मर्डर द कोर्ट कैन गिव कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद एंड लाइफ सेंटेंस मतलब मृत्यु दंड. अपार्ट फ्रॉम दिस अ डिस्ट्रिक्ट देर आर स्मॉल केस cause court and family court too. For the case pertaining to land revenue, there is a revenue court, and for the dispute of the laborer, there is a labor court, along with other tribunals. As per a tribunal for compensating vehicles, accident, for the protection of service and other rights of the teachers and professors, there is Gujarat Educational Organization Service Tribunal. Please try to remember टीचर्स एंड प्रोफेसर्स के केस गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सॉल्व होते हैं. कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन फोरम मतलब कंज्यूमर ग्राहक का कोई भी मैटर हो, ओके कि एक्सपायरी डेट फॉर एन एग्जांपल एक्सपायरी डेट की दवाई है, एक्सपायरी डेट का कुछ भी खाना है, तो अगर इससे खाने से आपकी कोई सेहत में प्रॉब्लम आया है तो वो सारे केसेस XYZ जो भी कंज्यूमर रिलेटेड होगा वो सारे कंज्यूमर कोर्ट में सॉल्व होंगे. फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो केसेस को फटाफट से सॉल्व करते हैं, ओके. एंड द नेक्स्ट इज़ पोटा कोर्ट जहाँ पर टेररिज्म वगैरह जो है उसका केस सॉल्व होता है. एंड ऑल दिस आर बीन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बाइफरकेट किया गया है क्योंकि हर एक मैटर्स हर एक केसेस की सुनवाई उनके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं एंड दैट इज़ हाउ ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. एंड हर एक इंडिपेंडेंटली कोर्ट वर्क करेंगे अपने हिसाब से लॉफुली एंड पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू द बेनिफिट्स एंड हैव बिकम अवेयर. लोग जागरूक हो गए हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है कि अगर लॉ अगर कानून है तो what all benefits we will be getting it and we can stay in peace and in harmony. Talking about the लोक अदालत. लोक अदालत स्टूडेंट्स द वर्ड लोक का मतलब है पीपल, आम जनता, तो उसके लिए जो अदालत बनाई गई है तो दे आर नोन एज लोक अदालत. गुजरात स्टेट पहला ऐसा स्टेट था जो लोक अदालत लेके आया जो स्पीडी एंड इकोनॉमिकल जस्टिस देता है पुअर लोगों को, ओके. वीक एंड एक्सप्लॉयटेड सेक्शंस, एक्सप्लॉयटेड इन द सेंस कि जो भी हम उनको नकारते हैं जो लोगों को सोसाइटी वाले, वो सभी लोग जो गरीब है वीक है वो अपने केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कम पैसों में लोक अदालत में जाते हैं, ओके. इट गिव्स फ्री सपोर्ट एंड गाइडेंस अंडर लीगल एड सर्विस सेंटर होता है जो अहमदाबाद में स्थित है, ओके. एंड वो हॉलीडेज़ एंड संडेज़ में भी वर्क करते हैं अगेन विथ कंसल्टेशन एंड कन्वीनियंस ऑफ द पिटिशनर. लोक अदालत जनरली केसेस कंपेंसेशन के, डाइवोर्स, एलिमोनी, डेट्स यानी कर्जे के लिए जो भी बात होती है, पर्सनल कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट, ये सारी चीज़ों का लोक अदालत में केसेस सॉल्व होता है. स्टूडेंट्स ट्राई टू रिमेंबर लोक अदालत में सोशल वर्कर्स होते हैं वर्क करने के लिए जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, एजुकेशन की फील्ड में हो और वो अपनी राय देना चाहते हैं. कोई भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर्स, इंश्योरेंस ऑफिसर्स, जजेस, ये जुडिशियल ऑफिसर्स, ये सब लोग लोक अदालत में जाके अपना आइदर इट कैन बी फ्री ऑफ कॉस्ट और वो लोग अपनी फ़ीस जो बहुत ही नॉमिनल लेते हैं तो दैट इज़ कंसिस्टेड ऑफ लोक अदालत. यहाँ पर केसेस जो है वो बहुत ही सेटिस्फाइड मैनर में सॉल्व होते हैं, दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाए एंड द केस इन द लोक अदालत आर नाइदर विन और नाइदर लूज. लोक अदालत के केस ना तो नाइदर विन नाइदर लूज दिया गया है, मतलब कि कोई पार्टी नाराज़ ना हो, आप भी वो डिसीजन से खुश हो और सामने वाली पार्टी भी वो डिसीजन को एक्सेप्ट कर ले. लोक अदालत मनी एंड टाइम को बचाते हैं और जो भी सारे पेंडिंग केसेस है वो लोक अदालत में सॉल्व होते हैं. ऑल द जजमेंट्स ऑफ द लोक अदालत्स आर बैक्ड बाय द लॉ
and therefore the lok adalats have become a center of attraction. Students, please try to remember कि जो भी लोक अदालत है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज यहाँ पर सारे केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाता है, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। वीक लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है लोक अदालत, एंड दे कैन सॉल्व देयर मैटर इजीली, एंड इसीलिए लोग लोक अदालत को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ लोक अदालत। लोक का मीनिंग है आम, ओके आम लोगों के लिए जो अदालत बनाई गई है, कोर्ट बनाया गया है, तो दैट इज़ लोक अदालत, एंड गुजरात स्टेट वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट लोक अदालत। और लोक अदालत गिव स्पीडी एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल बोला गया है तो इट कैन बी अ वेरी नॉमिनल फीस, बहुत ही कम फीस में आपके केसेस सॉल्व हो जाते हैं, ओके, एंड जस्टिस can be for the poor, weak and exploited sections of the society. Under this, court provides free support and guidance through Legal Aid Service Center, that is in Ahmedabad. एक गाइडेंस सेक्शन है जो अहमदाबाद में स्थित है, जिसको लीगल एड सर्विस सेंटर बोला जाता है। लोक अदालत फंक्शंस वॉलंटरीली इवन ऑन संडेज एंड हॉलीडेज at the district and at the taluka headquarters as per the convenience of the petitioners. See, agar if at all, for an example, I say that I work from Monday to Saturday, तो लोक अदालत आपके हिसाब से संडे या तो कोई हॉलीडेज में आपके लिए फंक्शन भी करेंगे। ये केस लगभग शायद हर एक केसेस को वो सॉल्व कर सकते हैं, बट बेसिकली लोक अदालत के पास कंपेंसेशन रिलेटेड, डाइवोर्स, एलिमोनी आगे भी बताया, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, डेट्स मतलब कर्जे के लिए, कोई प्रॉब्लम है, केस है, कर्जा नहीं दे रहे, कंप्लीट कर्जा के लिए देयर आर सो मेनी केसेस, तो उसके केस भी लोक अदालत में सॉल्व होते हैं। कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट, जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोक अदालत में सॉल्व होती है। लोक अदालत में जनरली जो सोशल वर्कर्स है, एजुकेशनिस्ट है, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, ये सब लोग काम करते हैं। इन दैट सेंस कि लोक अदालत में वही लोग वर्कआउट करते हैं जो बेसिकली सेवा देने के लिए रेडी है, ओके। सो बिकॉज द रीज़न इज़ कि वहाँ पर कोई फ़ीस या तो बहुत ही नॉमिनल फीस में केस सॉल्व हो जाता है। सेट केसेस एमिकेबली, मतलब बेहतरीन तरीके से दोनों साइड से नाइदर विन नाइदर लूज तरीके से लोक अदालत में केसेस को सॉल्व किया जाता है, मतलब दोनों पार्टीज सेटिस्फाइड होती है। लोक अदालत सेव टाइम एंड मनी, दोनों टाइम और मनी दोनों बचाते हैं, बिकॉज टाइम इसीलिए क्योंकि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट लेके आते हैं, और वो भी लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से इट इज़ वैलिड। एंड द लास्ट इज इट इज़ ऑल द जजमेंट्स ऑफ द लोक सभा आर बैक्ड बाय द लॉ, कानून के हिसाब से है, एंड देयरफॉर लोक अदालत आर नोन एज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सभी लोग लोक अदालत के केसेस सॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज द रीज़न इज दे आर स्पीडी एंड सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी ऑल्सो। The last topic of the chapter is independence of judiciary. स्टूडेंट्स, पहले से ही हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन है, बॉडी है, जिसमें ना तो लेजिस्लेटिव ना तो एग्जीक्यूटिव कोई वहाँ पर अपना हुक्म नहीं जमाएगा ऑन जुडिशरी गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज़ फॉर्म यूनिफॉर्म एंड इंडिपेंडेंट बॉडी जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स और जस्टिस के लिए प्रिवेल्ड है, they are working for it, okay. So judiciary is the protector of the law, and that is the reason nobody is working upon them, neither it is inclined or biased. कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, तो कोई भी पार्टी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे चल रही है, फॉर एन एग्जांपल अभी बीजेपी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो उसके लिए वो बायस्ड है, पार्शियलिटी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी। यहाँ पर जजेस के मैटर्स जैसे कि ट्रांसफ़र, उनके पे स्केल, प्रमोशन, रिटायरमेंट पीरियड, ये सब कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से ही चलता है। इसमें भी पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, और कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी जज को या कोई भी जुडिशियल ऑफिसर को अपनी जगह से
प्रेशर के पॉलिटिकल प्रेशर से किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, ये भी आप याद रख लेना। यहाँ की प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पेंशन फंड वो भी कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर ऑल्टर होगा तो पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन बहुत ही कम लेवल पे होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर्ड है। और जब भी पार्लियामेंट बैठती है तो जुडिशरी के जजेस जो है उसके बिहेवियर, उसका जजमेंट लेने का तरीका क्रिटिकली कोई भी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करेगा। ओके, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ये नहीं बोलेगा कि ये जज ने इस प्रकार के से केस सॉल्व किया है, देन द डिसीजन वॉज नॉट टेकन करेक्टली एंड ऑल दैट स्टफ। नथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट या तो एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। One more thing, the judges after they retire they cannot carry their practice in any of the court. वो कोर्ट में जाके अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये याद रखना स्टूडेंट्स। अगर हाँ कभी कभार चाहते हैं तो वो अपने लॉ के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोक अदालत में जाके सिर्फ अपनी सर्विस, अपनी सेवा दे सकते हैं, पर कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। ओके, ये इसीलिए है, यहाँ पर दिया गया है The purpose is to empower the judges to perform their duties fearlessly, क्योंकि आगे के जो नीचे के जजेस हैं वो अपनी ड्यूटी किस प्रकार से करेंगे, fearlessly, honestly, self reliantly, independently and firmly, ताकि अपने जजमेंट को ट्रू, ट्रांसपेरेंट एंड क्विक जस्टिस दे सके। प्लीज़ स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जजेस कैसे होने चाहिए। फाइन। And students, one more thing, if at all any cases regarding the public welfare का मतलब है कि पब्लिक की भलाई के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, अगर नीचे के कोर्ट से आपके क्वेरी सॉल्व नहीं होते, आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक वेलफेयर, तो आप सुप्रीम कोर्ट में लेटर के ज़रिए या तो पोस्ट कार्ड में लिख के आप पब्लिक वेलफेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट को वो पोस्ट कर सकते हो। ओके, और ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने ये केसेस को सॉल्व भी किया है। सी यहाँ पर लास्ट सेकेंड लाइन में दिया गया, इन द पास्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ट्रीटेड सच मैटर्स एज पिटिशंस, रिक्वेस्ट एंड हैज़ गिवन द जजमेंट्स, और उसके लिए जजमेंट्स भी दिए गए। एंड दिस हैज़ प्रूव्ड द विजिलेंस ऑफ द जुडिशरी इन द पब्लिक। विजिलेंस इन द सेंस की एक वॉच, एक नज़र जिसको बोलते हैं, कहने का मतलब कि भाई हाँ सुप्रीम कोर्ट वॉच रख रही है अपने सिटीजन्स के ऊपर, उनकी भलाई के लिए, फॉर द पब्लिक वेलफेयर, सो दैट दे आर वर्किंग। एंड द लास्ट पैराग्राफ इट इज गिवन, देर आर ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ पेंडिंग इन द जुडिशियरी। ये केसेस जो है वो अभी 3.5 है, इट कैन बी इवन मच मोर देन दैट, और the cases are not solved fast, there is a delay in justice because there are insufficient number of courts, judges and staff, that is the reason for the delay in solving the cases. And the task of the government, of the central government, is to reframe the laws and irrelevant laws. कंटिन्यूसली जुडिशरी गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है सॉल्व करने के कि जो इररिलेवेंट लॉज है, जो पुराने हैं, उसको निकाल के इररिलेवेंट लॉज है उसको रीफ्रेम करके हम नए कानून को बनाए, नए लॉज को फ्रेम करें, ताकि सिटीजन्स को जितने हो सके उतने ज़्यादा अपनी क्वेरीज को सॉल्यूशन मिल जाए। फाइन, आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर, एंड इफ एट ऑल एनी डाउट is there, then please do come in the school or in person, you can ask it. Thank you.